Hello everyone and welcome to the next video of Standard 10 Geography Chapter 17. We will read about waste management, need for the management of waste. In the previous chapter number 16 we read about the waste, how the waste is generated, how the waste is accumulated. And in this chapter we will read why we need to manage it. It's very simple to understand that whether we have a lot of waste, it will create so many problems. It will create so many problems in the air, in water, in the landfill, and everywhere. So, why the waste is generated? We will read two things in this chapter. Basically, I will give you the very short answers at very main topics to learn, which will definitely come in paper. And as I told you earlier, there are four chapters, chapter 16, 17, 18, and 19. Out of these four chapters, one 10-mark question will come. So we have to go through this chapter. This is the smallest chapter in this book, chapter number 17, which is only of 2 pages. So we will read two things: how the waste is generated, why this much waste is being generated, and secondly, why we need to manage it and how we will manage it. So first of all, you see need for the management of the waste. In first 3 points, it is crystal clear that the waste is generated because of the population. First, the rapid growth of population and industry. In this para, we understood that people, as an we see the population is increasing, so the resources are also being used up, and so all the other technological things or other machines is being used, like vehicles and industries and all that. Second, increasing urbanization has led to the overcrowding of the cities, the lack of spaces for disposal garbage. जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, बहुत सारे लोग रहने के लिए शहर में आएंगे, तो वेस्ट कहाँ फेंकेंगे भाई? जगह ही नहीं बचेगी. And third, there is an increase in airborne and waterborne diseases, spoilage of landscape, and fear of radioactive waste affecting our life. अब तीसरे इस पॉइंट में सब कुछ क्लियर है कि ये मैनेज अगर नहीं हुआ ठीक से तो क्या प्रॉब्लम आएंगी. एयरबॉर्न डिसीजेज आएंगी, वाटरबॉर्न डिसीजेज आएंगी, और रेडियो वेस्ट से भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. और लास्ट पैरा अंडर द पिक्चर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज. अब ये इनकी वजह से वेस्ट जो बढ़ रहा है, कुछ घरों में डोमेस्टिक वेस्ट होता है, कुछ केमिकल वेस्ट होता है, कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, प्रॉब्लम आ रही है. इन देसी फर्स्ट जो मैंने टिक लगा रखी है सेकंड पैरा में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज अनफेवरेबल अल्टरनेशन ऑफ आवर surroundings through direct or indirect efforts of change in the physical, chemical, and biological characteristics of land. ये क्वेश्चन है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है. तो हम ये उसको बोलते हैं कि जो सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से जो हम लोग अपने एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, रासायनिक, भौतिक या जैविक तौर पर, तो उनको एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोलते हैं. नीड फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट. अब देखो, यूरोप हो जाए आप या यूएस जैसे बड़े देश हो जाएं, इन लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके पास तीन मेन चीज़ें हैं. पहली चीज़ है नो हाउ. नो हाउ कि उनको पता है कि कैसे करना है. दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस. उनके लोगों को ये इसके प्रति वो जागरूक हैं कि कूड़ा कैसे फेंकना है, कहाँ फेंकना है, डिस्पोज ऑफ कैसे करना है. एंड बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये जो है लास्ट लाइन. तो ये तीन चीज़ें उनके पास हैं, इसके लिए उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है. एंड देन आफ्टर नीड फॉर द आवर ऑफ द कंट्री इज टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग स्टेप्स. कौन से स्टेप्स नीचे हैं? पहला, रिस्ट्रिक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. भाई जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा. एनवायरमेंट ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, disposal of waste in covered vans, implementation of strict laws, educating the farmers about the impact of harmful pesticides and human life also. और ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इसमें. अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो डेफिनेटली जो वेस्ट है वो बढ़ता जाएगा. अभी नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले ये जो ऊपर तस्वीरों में जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन, ये पढ़ लेते हैं कि लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं. अब जाएंगे तो पानी पीना है. अब जो नदियां नाले जो हैं, जो वाटर बॉडीज हैं,
अब वो पोल्यूटेड हो रहे हैं और उनको कई बार मैनेजमेंट गवर्नमेंट्स को सफिशिएंट नहीं होती उनको सैनिटरी सर्विस देने के लिए, तो फिर वहाँ पे जो उनकी जो एक्वाटिक लाइफ है वो खत्म हो जाती है, गेटिंग पेरिश्ड, मतलब फिनिश हो जाना। अब इस बारे में ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर कॉज्ड ड्यू टू इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस वेस्ट। इनसफिशिएंट मैनेज की वजह से बढ़ रहा है, प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। तो वो क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी केयरफुल जॉब टू डू। ऐसा नहीं है कि एक जगह से घोड़ा उठा के ट्रक में डाला और द ट्रक इज humbling and fumbling and going on road and throwing all the rubbish on the both sides and picking from one place and spreading it all over the city। तो ऐसा होने से तो गड़बड़ है। तो क्या है पॉइंट इसके? टेक्निक्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट डिफरेंट। अर्बन वेस्ट रिक्वायर्स केयरफुल सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन जो वर्ड्स में आया है इसका मतलब होता है कि वेस्ट को सेपरेट करना मतलब गीला कूड़ा अलग करना, सूखा कूड़ा अलग करना, केमिकल्स अलग करने, डोमेस्टिक वेस्ट अलग करना, प्लास्टिक अलग करना। सो दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। बिफोर इट कैन बी रिसाइकल्ड और डिस्पोज्ड। रिसाइकल मतलब उसको फिर से इस्तेमाल में लेकर आना, डिस्पोज मतलब उसको खत्म कर देना। Higher levels of technology and sound management in such areas is most important to minimize environment pollution। और लास्ट पॉइंट में देखिए, इन रूरल रीजन्स where the lifestyles are comparatively simpler and consumer habits more sustained, most of the waste generated is organic waste। जहाँ पर लाइफ सिंपल है और सस्टेन्ड है तो वहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। अब मूविंग ऑन, the waste management in residential localities needs more organized management of waste since it may lead to more pressure on environment। जो रेजिडेंशियल एरिया का जो वेस्ट है उसको बहुत मैनेजफुल तरीके से इसको संभालना पड़ेगा। अब क्या है, इंडस्ट्रियल एरियाज वेस्ट ऑफ हजार्डस नेचर मीन्स वेरी केयरफुल हैंडलिंग। नेक्स्ट पॉइंट में म्यूनिसिपल वेस्ट नीड्स टू बी हैंडल्ड केयरफुली। द लोकल गवर्नमेंट मस्ट टेक फुल केयर ऑफ द कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। कलेक्ट करना, उसको वहां से लेके जाना और उसको ठीक से डिस्पोज ऑफ कर देना। Now, if these wastes are not handled properly, they may become source of various diseases। और द लास्ट पैर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। डंपिंग ई वेस्ट इज ऑल्सो बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम। ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज। हेंस ई वेस्ट recycling is very important to protect our environment। So guys, this was all about lesson number 17। I hope you understood, it's very easy। So please read the chapter thoroughly because reading is must, and answer keys has already been sent to you। I hope you understood, and we will meet in the next video. Till then, have a nice time. Bye, thank you।